إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین. آج آپ کی مدینہ بکس کورس کی کلاس نمبر 62 ہے. اس میں انشاءاللہ تعالی آپ مدینہ بک 5 نیو کا لیسن نمبر 10 اور اولڈ مدینہ بک 2 کا لیسن نمبر 30 الدرس الثالثون کو کریں گے. لیسن نمبر 10 الدرس العاشر. لیسن نمبر 10 میں کچھ نیا نہیں پڑھیں گے آپ. لیسن نمبر 10 میں آپ کیا پڑھیں گے؟ ڈاکٹر عبدالرحیم کا طریقہ ہے کہ وہ ہمیشہ مختلف لیسنز میں مختلف صیغے استعمال کرتے ہیں، ان کی پریکٹس کرواتے ہیں، لیکن ان کا ایک یہ بھی خاص بات ہے کہ وہ تثنیہ کسی لیسن میں استعمال نہیں کرتے. تثنیہ کے لیے ہمیشہ الگ لیسن ہوتا ہے. جو بھی رول پڑھائیں اس میں تثنیہ کے لیے الگ لیسن ہوتا ہے، پھر صرف تثنیہ ہوتا ہے اس لیسن میں. تو اس لیسن میں بھی آپ صرف تثنیہ پڑھنے جا رہے ہیں، سب کچھ تثنیہ، ضمیر تثنیہ، فعل تثنیہ، اسم تثنیہ، ایوری تھنگ تثنیہ. 2 کے بارے میں بات ہوگی. تو چلیں لیسن سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. یقفو بالبابی فتیانی. یقفو کھڑے ہیں، بالبابی دروازے پر، فتیانی 2 نوجوان. اب یہ سینیریو پیش کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے دیکھیں یقفو کھڑے ہیں، حال کا ٹرانسلیشن کیا تو اٹ مینز کہ یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے. تو کیا فعل مضارع کا؟ تو یا مضارع کی علامت اور قاف اور فا اس کا روٹ ورڈ. تو اٹ مینز کہ ایک روٹ ورڈ مسنگ ہے، اور وہ کیا ہے؟ واو. وقفا ٹو اسٹینڈ. یہ تو کافی اب پڑھ چکے ہیں یہ والا فعل بھی اور اس سے ریلیٹڈ اسم بھی. وقفا اس سے مضارع کیا بنا؟ یقفو. تو اٹ مینز کہ یہ کس ٹائپ کا پھر فعل ہے؟ کس ٹائپ کا فعل ہے جو آپ نے لاسٹ لیسنز پڑھے ہیں؟ مثال ہوا نا، فا کلمہ واو ہے تو حرف علت ہے، تو یہ مثال ہے، رائٹ. مثال میں پھر واوی اور یہاں نہیں ہے واو، تو اٹ مینز کہ آپ نے آپریٹ کر کے اس کو نکال دیا. سب یاد ہے نا؟ الحمدللہ. اچھا، تو یہ ہو گیا مثال. اور باب کون سا؟ وقفا یقفو سے دارابا یدریبو. ایزی ہے نا؟ اچھا، یقفو بالبابی جار مجرور متعلق فعل. کھڑا ہے، کون کھڑے ہیں؟ فتیانی 2 نوجوان. یہ اب تثنیہ کس کا تثنیہ؟ فتن کا. ٹھیک ہے. فتیانی کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی پوزیشن کیا ہے؟ فاعل، کیونکہ کھڑے ہونے والے کون ہیں؟ 2 نوجوان. تو یہ فاعل ہوا. فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. تو کیا بتا سکتے ہیں اب رفع کی علامت کیا ہے؟ اس میں رفع کی علامت، مرفوع ہونے کی علامت الف. آپ کو میں نے بڑی ڈیٹیل سے عدد کے بارے میں جب پڑھایا تھا، آپ کو یاد ہوگا. تو یہاں رفع کی علامت الف ہے اور یہ فاعل ہے. تو مرفوع یعنی یہ سب مرفوع ہے کیونکہ فاعل ہے، اور رفع کی علامت الف ہے. الف مثنیٰ بھی کہتے ہیں اس کو. اور نون کسرہ کس چیز کی علامت ہے؟ ڈیول کی، کہ یہ 2 ہیں. ٹھیک ہے. تو اب آپ کو آنی کی ساؤنڈ آنے والی ہے. ٹھیک ہے. المدرس ٹیچر. ادخلا داخلہ روٹ ورڈ، شروع میں حمزہ، اس پہ دمہ، کچھ آئیڈیا ہو رہا ہے. اور پھر ساؤنڈ سے بھی ادخلا داخل ہو جاؤ.
कौन दाखिल हो जाए? तुम दोनों। तो दोनों का मतलब तस्निया, तो इसका मतलब हुआ कि ये अमर का सीगा फेल अमरिन। अब ये बना किससे? फेल अमर आपको पता है मुदारे से बनता है। तो तद एक मैं आपको इधर लिख के बता देती हूँ, बाकी फिर आप बताएंगे। तदखुला नी, क्योंकि तस्निया का सीगा हाजिर का है ना, ठीक है, तस्निया हाजिर फेल मुदारे। अब बताएं, इसको बनाने का तरीका आपको याद होना चाहिए। हज़फी, हज़फी अलामत मुदारे और एंड से हज़फी नून, दो इसमें चौप हैं। उसके बाद अब चूंकि पढ़ा नहीं जा रहा तो अब क्या करेंगे? जाहिर है यहाँ पे हमजा लाना पड़ेगा, और हमजा को कौन सी हरकत दी जाएगी? दम्मा। तो ये बन गया उदखुला। दम्मा क्यों देना है? क्योंकि आइन कलिमा की हरकत को देखते हुए। तो उदखुला तस्निया फेल अमर, फेल अमरिन मबनियुन अला हज़फी नून। और अब बताएं फाइल कहाँ है इसका? उदखुला का फाइल अलिफ, ये ठीक है, ये फाइल है ना, उदखुला का फाइल अलिफ। तो रफा, ये मतलब फाइल चूंकि मरफू होता है और बहरहाल ये अलिफ फाइल है। अच्छा, अब इस यहाँ पे थोड़ी एक चीज आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि ये पहले भी आप जानते ही हैं। इसम में भी तो अलिफ है, ये देखें, इधर भी अलिफ है और ये भी अलिफ है। यहाँ पे जो अलिफ है ये एराब है, ये एराब की अलामत है, ठीक है, एराब की अलामत है। लेकिन यहाँ अलिफ फाइल है, यहाँ तो पूरा लफ्ज फतयानी फाइल है ना, यहाँ सिर्फ ये अलिफ जमीर है, मुत्तसिल जमीर, जो कि मरफू होती है, जो अफाल में इस्तेमाल होती है। ये वाली जमीर है ना, यही वाली, यहाँ भी ये फाइल है। तो फेल मुदारे में, फेल अमर में, फेल माजी में, सब में अलिफ फाइल होता है, तस्निया में रफा की अलामत। फिर जब फेल मुदारे आता है तो उसमें फिर जाहिर है जब वो चेंज होता है उसके एतबार से मंसूब या जो भी, तो फिर उसके एतबार से उसको देखते हैं। तो फिर नून हज़फ हो जाता है, जाहिर है, तो अलिफ से हमें पता चलता है कि ये तस्निया है, ठीक है। और इसम में जब चेंज होता है राब, तो फिर अलिफ चेंज हो जाता है, तो वो आगे जाके आएगा। तो फिलहाल इतना याद रखें, यानी इसम में जो अलिफ होता है वो एराब की अलामत होता है, और फेल अमर में या फेल मुदारे में या फेल माजी में जो अलिफ होता है वो फाइल होता है, ठीक है, वो जमीर होती है। चले, तो उदखुला तुम दोनों दाखिल हो जाओ, और अब ये जमीर किसकी तरफ जा रही है? फतयानी की तरफ, राइट। अच्छा जी, अब आ जाए, मन अंतुमा, तुम दोनों कौन हो? तो मन इस्तफाम के लिए अंतुमा। अब देखें अंतुमा भी तो जमीर है, जमीर इस्तेमाल हो रही है, और वो किसके लिए? तस्निया के लिए। और ये किसकी तरफ जा रही है? यही फतयानी की तरफ। अहदुहुमा, उन दोनों में से एक, वन ऑफ देम, नहनु तालिबानी जदीदानी, वी आर स्टूडेंट्स जदीदानी न्यू, हम दो नए स्टूडेंट हैं। नाहनु की जमीर शुरू में आ रही है और ये मुतकल्लिम की है। वैसे तो ये जमा के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन यहाँ ये तस्निया के लिए, क्योंकि आपको पता है मुतकल्लिम की जमीर जो होती है वो तस्निया के लिए भी सेम जमीर इस्तेमाल होती है, मुजक्कर मोनस तस्निया जमा। नाहनु की जमीर की क्या पोजीशन होगी? मुब्तदा, क्योंकि जमीर शुरू में आ रही है, मारिफा है तो मुब्तदा है। और खबर क्या है फिर इसकी? तालिबानी, हम दो स्टूडेंट हैं, हम स्टूडेंट्स हैं। वो तो मैं दो इसलिए आपको बार बार बोल रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये तस्निया है। कौन से टाइप के स्टूडेंट हैं? जदीदानी, न्यू। तो इसकी क्या पोजीशन है? नात, और नात मनूत मैच करती है। अब तालिबानी और जदीदानी दोनों में आपको क्या नजर आ रहा है? अलिफ। और अलिफ किस चीज की अलामत है? अब यहाँ पे बताएं किस चीज की अलामत है? रफा की, कि ये एराब है। अलिफ एराब बिल हर्फ है तो रफा की अलामत है। नून कसरा तस्निया की। अल मुदरिस मरहबा, मरहबन, आपको पता है वेलकम के लिए अहलन व सहलन मरहबा, या मरहबन भी कह सकते हैं, खाली अहलन सहलन भी कह सकते हैं, इट डिपेंड। तो मरहबा बिकुमा, तुम दोनों को वेलकम, वेलकम बोथ ऑफ यू। अब कुमा जो है ये जार मजरूर है, बी हर्फ जार, और कुमा की जमीर इसम मजरूर। अब जिसको भी वेलकम कहा जाता है डिपेंड करता है, अगर जमा है तो कुम भी कह सकते हैं, जमीर चेंज हो जाती है ना। अगर वाहिद है तो बी का, अगर मोनस है तो बी की,
رائٹ. تو یہ جو حاضر کی ضمیر ہے یہ چینج ہو جاتی ہے اور اس کے مطابق حاضر کے مطابق. تو جار مجرور. اب یہاں پہ مرحبن ہے، بیکما ہے، اس کو فی الحال ہم سکپ کریں گے، یہاں انالیسس نہیں کریں گے. من اینا انتما، تم دونوں کہاں سے ہو، کس جگہ سے ہو. انتما کی پھر ضمیر آ گئی. ہوا نحنو من الصینی، ہم چائنا سے ہیں. وی آر فرام چائنا. نحنو مبتدا اور جار مجرور. نحنو پھر دیکھ لیں یہ فتیانی کی طرف جا رہی ہے، متکلم جمع اور تثنیہ کے لیے. المدرس متا وصلتما الی المدینۃ المنورۃ. جی کیا میننگ ہوا؟ وین ڈڈ یو ریچ مدینہ منورہ، کب تم آئے مدینہ منورہ. سب سے پہلے دیکھیں متا اسم استفہام وصل، وصلہ، وصلہ کون سا فعل ہے؟ ماضی کا فعل. اور یہ کس ٹائپ کا فعل ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو واو ہے. مثال یاد ہے، یہ بھی آپ کر چکے ہیں، اس میں کافی پریکٹس. تو مثال واوی. وصلہ کا مطلب ہوتا ہے ٹو ریچ، پہنچنا کہیں، کہ تم کب پہنچے مدینہ منورہ. ہوا وصلنا امسی، ہم پہنچے وی ریچڈ یسٹرڈے، کل. وصلہ پھر فعل، نا کی ضمیر فاعل، اور یہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ یہ بھی متصل ضمیر ہے. متصل ضمیر تثنیہ کے لیے، جیسے نحنو کی ضمیر منفصل ہے یہ متصل، لیکن یہ تثنیہ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. اب ہم کہہ رہے ہیں تو یہ جمع نہیں ہے، یہ فتح یعنی کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو وصلہ فعل، نا کی ضمیر فاعل، امسی ظرف. ظرف کا تعلق کس سے ہے؟ فعل سے، اور یہاں اس کو کہیں گے مفعول فیہ. المدرس ٹیچر. اتو امانی انتما، حمزۃ الاستفہام یہ آپ کے لیے نیا لفظ ہے. تو امانی اس کا کیا میننگ ہے؟ ادھر دیکھتے ہیں ویکیبلری میں، یہ آپ کی لیسن نمبر 30 کی ویکیبلری. یہاں دیکھیں تو امانو جڑواں، ٹوئنس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ تثنیہ کا صیغہ آیا ہوا ہے. کیا تم دونوں جڑواں ہو؟ تو یہاں سوال کر رہا ہے اسے. ہوا نعم یس وکیفا عرفت ذالک یا استاذ. یس کہ ہم لوگ جڑواں ہیں، لیکن آگے سے وہ سوال کرتے ہیں وکیفا عرفت، کیسے تم نے جانا، ذالک وہ، او استاد. کہ انہیں حیرت ہو رہی ہے کہ اسے کیسے پتا چلا کہ ہم جڑواں ہیں. یس ہاؤ ڈو یو نو دیٹ. اچھا اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہاں پہ یہ ذالکہ جو ہے اس کی کیا پوزیشن ہے؟ اس کی کیا پوزیشن ہے؟ کیفا اسم استفہام، عرف فعل، تا کی ضمیر فاعل، تم نے جانا. سوال پیدا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے نا، تو فعل متعدی ہے تو اب اس کا مفعول چاہیے. تو کیا جانا؟ ذالکہ وہ، تو یہ ہو گیا مفعول بھی فی محل نصب. لیکن کس کی طرف اشارہ ہے؟ کیا جانا کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ کون سی چیز کی طرف ہے؟ جی یعنی یہ بات کہ ہم دونوں جڑواں ہیں، یہ بات آپ کو کیسے پتا چلی؟ المدرس ٹیچر. عرفت من الشبہ الذی بینکما، میں نے جانا، کیا جانا؟ کہ تم دونوں ٹوئنز ہو. کس طرح؟ من الشبہ مشابہت سے، الذی وہ جو، بینکما تم دونوں میں ہے. I knew it from the similarity which is between you two. یہ دیکھیں ان دونوں کی مشابہت آپ کو نظر آ رہی ہے، دونوں ایک جیسے ہیں بالکل. چین سے ہے نا، چائنیز بھی ہیں. عرف فعل، تو کی ضمیر فاعل، من الشبہ جار مجرور متعلق فعل، الذی وہ جو مشابہت. تو الذی اسم موصول ہے، اس کی کیا پوزیشن ہوئی؟ نعت. کس کی نعت؟ اس کی نعت. بینہ ظرف، اور ظاہر الذی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ صلہ، لیکن وہ محذوف ہے کیونکہ بینہ ظرف آ رہا ہے تو اسے متعلق، اور کما کی ضمیر مضاف الیہ. ما اسماؤکما، کیا نام ہے تم دونوں کا؟ اچھا یہاں ایک انٹرسٹنگ چیز ہے، غور کر لیں. ما تو ہو گیا ظاہر ہے استفہام کے لیے، کیا اسماؤ جمع آ رہی ہے، یہاں اب تثنیہ نہیں آ رہا، حالانکہ تثنیہ آنا چاہیے. کما کی ضمیر تثنیہ ہے، تم دونوں کا نام، تو ظاہر ہے یہ مرکب اضافی ہے نا.
اب یہاں پہ تسنیہ کیوں نہیں آیا، یہ پوائنٹ ریمبر میں دیا، میں آپ کو وہاں سے بتاتی ہوں. یہاں دیکھیں اب یہ پوائنٹ نمبر 2، یہ پوائنٹ ریمبر، سیم جملہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، وٹ آر یور نیمز، کہ تمہارے نام کیا ہیں. اب نیچے انہوں نے ایکسپلینیشن دی ہے، نوٹ دیٹ دا پلورل اسماء has been used here instead of the dual اسمانی. اسم کی تسنیہ اگر بنائیں گے تو اسمانی بنے گا نا، الف نون کسرہ لگا کے، لیکن وہ کہتے ہیں things which are known to be only one are used in the plural while speaking of two. اب ویسے بھی آپ نوٹ کریں، اگر اسمانی ادھر ہوتا تو پھر کیا ٹرانسلیشن ہوتا، تم دونوں کے دو نام، یہ میننگ بنتا نا، اسمانی دو نام کما تم دونوں کے. تو اب یہاں پہ چونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ تسنیہ ہے کما سے، کہ کس سے سوال کیا جا رہا ہے، کہ تم دونوں کے نام. تو اچھا یہاں پہ ان کی ایگزامپلز بھی دیکھیں، دو اور ایگزامپل ہیں، اغسلا وجوہکما، واش یور فیسز. اب دیکھیں یہاں نہیں لکھا ہوا، ٹو فیسز تو نہیں کہہ سکتے نا، کما کی ضمیر آگئی تم دونوں کے منہ، تو یہ جمع میں آئے گا ظاہر سیگا. تو ایک سلا امر کا سیگا، یہ بھی تسنیہ کے لیے، دھو تم دونوں اپنے منہ، اپنے منہ. اسی طرح یہاں دیکھیں حلق الولدانی رؤوسہما، the two boys shaved their head، کہ حلق کا مطلب ہوتا ہے شیو کرنا، یعنی بال منڈوانا. تو دو لڑکوں نے کاٹے، منڈوائے، شیو کیے اپنے سر. اپنے دو سر نہیں کہہ سکتے، تو یہ اس طرح سے یہ ایک مخصوص طریقہ، تو یہاں بھی اسی طرح استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، ہوا اسمی الحسن، مائی نیم از حسن، اس نے نام پوچھا تھا. ایک کہتا ہے کہ میرا نام حسن ہے، وَأَخِي اسمہ الحسین، اور میرے بھائی اس کا نام حسین ہے. میرا نام حسن ہے اور میرا بھائی اس کا نام حسین ہے. اچھا سب سے پہلے ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ اسمی میں اسمو بول رہی ہوں، کیوں؟ کیونکہ ضمۃ المقدر ہے، تو یہ کیا ہوگا، مبتدا وہو مضاف یا متکلم مضاف الیہ، اور الحسن کی پوزیشن خبر. خبر معرفہ ہے، ظاہر معرفہ ہی کیونکہ علم ہے. الف لام بھی ہے اس کے اوپر، ویسے آپ کو پتا ہے الحسن حسین بھی استعمال ہوتا ہے، الحسین مطلب الف لام کے بغیر دونوں نام استعمال ہوتے ہیں، وہ پھر بھی معرفہ ہے، لیکن الف لام آنے سے اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آپ ایڈوانس میں پڑھیں گے کہ کیوں نام کے اوپر الف لام آتا ہے. اچھا یہ ایک جملہ الگ ہے، ہو گیا میرا نام حسن ہے، وَأَخِي، اور میرا بھائی اس کا نام حسین ہے. تو اب یہاں اخو ظاہر ہے مرفوع ہے کیونکہ مبتدا ہے، یا کی وجہ سے کسرہ ہے، اور خبر کہاں ہے اب اس کی، یہاں پہ اس کی ظاہر ہے آگے پورا ایک جملہ ہے، یہ تو الحمدللہ آپ جانتے ہیں. اس جملے کے اندر پھر اسمو دوبارہ سے مبتدا ہے، وہو مضاف، وہ کی ضمیر مضاف الیہ، اور یہ خبر، یہ کس کی خبر ہے، اسمو کی خبر ہے. ٹھیک ہے، اور یہ پورا جملہ اسمیہ، خبر کس کی، اخو کی، تو فی محلی رفع، کہ میرا بھائی اس کا نام حسین. ٹھیک ہے، چلیں المدرس. ابھی کوئی نیا چیز آپ نہیں پڑھے سوائے کچھ نئی وکیبلری کے، سب آپ نے پڑھا ہوا ہے. جملہ اسمیہ خبر آتی ہے، جملہ فعلیہ خبر سب آتا ہے آپ کو. الکما اخوتن و اخواتن، کیا تم دونوں کی کے بھائی ہیں یا بہنیں، بھائی اور بہنیں ہیں. ظاہر ہے یہاں دیکھیں اخوتن جمع تکسیر اور جمع مؤنث سالم. آپ کو ماں کی ضمیر متصل تثنیہ کے لیے. الحسن، حسن نام، یس، لنا اخوانی و اختانی، اب سب کچھ تثنیہ آئے گا یہ یاد رکھیں. نام یس حرف جواب، لنا جار مجرور مقدم، تو پھر اس کا مطلب ہوا کہ خبر محذوف. اخوانی کی پھر کیا پوزیشن ہوگی، مبتدا مؤخر، اور رفع کی علامت کیا ہے یہاں پہ، الف نون کسرہ عدد، و اختانی، تو یہ کس کی کیا پوزیشن ہوئی، معطوف، دو بھائی اور دو بہنیں ہیں. اما رہی بات الاخوانی دو بھائیوں کی، فَيَعْمَلَانِ تو وہ دونوں کام کرتے ہیں، فی مکتبی خطوطن جویتن. یہ آپ کے لیے نئے کلمات ہیں، وکیبلری میں دیکھ لیں پہلے.
یہاں سے دیکھتے ہیں یہ آپ کی ویکیبلری بہت اچھی ہے. خطوط جویاتن اس کا مطلب ہوتا ہے ایئر لائنز فضائی راستے. اور مکتب خطوطی جویاتن ایئر لائن آفس. مکتب کا مطلب ہوتا ہے نا آفس لائبریری جہاں لکھنے پڑھنے کا کوئی بھی کام ہوتا ہے تو اس لیے. تو یہ آپ کے سامنے یہاں دیکھ لیں شابہن سملیرٹی یہ سارے آپ کے سامنے سارے کلمات. تو اب یہ کیا میننگ ہو گیا. رہی بات ایز فار مائی ٹو بردرز تو وہ دونوں کام کرتے ہیں کہاں ایئر لائن آفس میں. اچھا سب سے پہلے دیکھیں اما. اما کس ٹائپ کا کلمہ ہے پڑھا ہوا ہے آپ نے یہ حرف خاص طور پہ یہ کس ٹائپ کا خاص طور پہ کلمہ ہے بتائیں. حرف ہے لیکن کس ٹائپ کا حرف تفصیل اس کو بولتے ہیں حرف تفصیل کیونکہ اس میں جس طرح دو سے زیادہ یا دو کے لیے بات ہوتی ہے تو پھر ان کی ڈیٹیل بتاتا ہے کہ یہاں جہاں تک بات ہے میرے بھائیوں کی جہاں تک بات ہے میری اس طرح کر کے. تو اما حرف تفصیل اور اس کے بعد ہمیشہ مبتدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے تو یہ مبتدا ہو گیا. آگے پھر فا حرف عطف اور اس کے خبر کے اوپر اس مبتدا خبر پہ فا آتا ہے. یہ اس کی مخصوص ترتیب ہے. یا عملانی فعل مضارع مرفوع بثبوت نون اور یہ ظاہر تثنیہ کا صیغہ ہے. الف اس میں فاعل یہ فی مکتب جار مجرور خطوط مضاف الیہ جویات اس کی نعت. تو یہ ہو گیا آپ کا جملہ. اور یہ جو جملہ ہے جملہ فعلیہ اس کی پوزیشن کیا ہے پوزیشن خبر. کس کی خبر ہے یہ الاخوانی کی بھائیوں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ دونوں کام کرتے ہیں ایئر لائنز میں. تو فی محلی رفن. وقد درسا فی معہد اللغتی ھذا قبل سنوات. اچھا قد آ گیا. قد جو ہے انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بعد میں پڑھیں گے تو صحیح لیکن قد دو طرح کے استعمال ہوتا ہے. اگر یہ فعل ماضی سے پہلے آئے جیسے کہ یہاں آ رہا ہے اگر فعل ماضی سے آئے تو اس کو بولتے ہیں حرف تحقیق. لکھ لیں اپنے ساتھ میں حرف تحقیق. کب جب فعل ماضی سے پہلے آئے تو اس وقت یہ کس میننگ میں ہوتا ہے حرف تحقیق. تحقیق کا مطلب آپ کو آتا ہے کیا میننگ ہے تحقیق کا کسی چیز کو پختہ کرنا. اور جب یہ فعل مضارع سے پہلے آئے تو اس کو بولتے ہیں حرف تقلیل. تقلیل کا مطلب فعل مضارع سے پہلے تو اس وقت اس کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے کبھی کبھی. ٹھیک ہے ونس اپون اے ٹائم کبھی کبھی. لیکن ماضی سے پہلے آئے تو حرف تحقیق. تو یہاں حرف تحقیق ہے پختہ کر رہا ہے اس بات کو. تو وہ کہتا ہے وقد درسا اور یقیناً وہ دونوں پڑھتے تھے ماضی ہے نا فی معہد اللغتی ھذا اس زبان کے ادارے میں انسٹیٹیوٹ میں قبل سنوات کچھ سال پہلے. یعنی کہ وہ اس لینگویج کے انسٹیٹیوٹ میں کچھ سال پہلے پڑھا کرتے تھے یقیناً. اچھا اب یہاں پہ درسا تو فعل ہے آپ کو پتا ہے درسا اس میں الف فاعل اور یہ کس کی طرف جا رہا ہے ان دونوں بھائیوں کی طرف. فی حرف جر معہدی آپ کو پتا ہے انسٹیٹیوٹ کو بولتے ہیں کسی ادارے کو. لغتی مضاف الیہ ھذا کی پوزیشن اب آپ بتائیں گے مجھے. یہاں یہ جو اسم اشارہ آیا اینڈ پہ اس کی کیا پوزیشن ہے. آپ کو میں نے بتایا وہ کہ جب اسم اشارہ اینڈ پہ آتا ہے نا جملے کے تو اس وقت وہ کیا بنتا ہے نعت. اس زبان یہ اشارہ مانوی اشارہ ہے نا کہ انسٹیٹیوٹ اس زبان کا انسٹیٹیوٹ. ٹھیک ہے تو یہ مضاف ہے اور مضاف الیہ اور یہ نعت اس کی لغت کی نعت. ٹھیک فی محلی جرن کیونکہ یہ مجرور ہے نا. قبل ظاہر ظرف ہے سنوات مضاف الیہ. واما اور رہی بات الاختانی میری بہنوں کی تو ظاہر یہ بھی مبتدا ہے. فتدرسانی فی المدرسۃ ثانویۃ تو وہ پڑھتی ہیں مڈل سکول میں. اب یہ جملہ پھر فعلیہ آ گیا جیسے اوپر ہے یہ والا یہ خبر بن رہا تھا اخوان کی یہاں اختانی کی خبر بن رہا ہے. ٹھیک ہے یہ والا جملہ یہاں بھی تدرسانی. اب یہ تدرسانی فعل مضارع کا صیغہ یہ چونکہ الف یہ والا الف جو ہے
ये किसकी तरफ जा रही है फाइल, ये ज़मीर, ये अलिफ फाइल है ना, और नून कसरा के साथ ये है राबी। फिल मदरसा जार मजरूर सानवियती नात, तो ये भी खबर फी माली रफिन। कानत लना उख्तानी उखरयानी मातता फिस सिगारी। अच्छा, काना, काना फेल आ गया काफी अरसे के बाद। काना फेल आप सबको पता है किस टाइप का फेल है, फेल नाकिस। इसका इसम और इसकी खबर होती है। इसम क्या होता है, मरफू, खबर क्या होती है, मंसूब। ठीक है, तो कानत मोनस का सीगा है, वाहिद का सीगा, ये भी आप नोट कर लें। तो अब इसका इसम क्या है बताएं, कहाँ है इसम, लना तो जार मजरूर है, मरफू इसम चाहिए, उख्तानी, क्या ये इसम बना सकते हैं इसको, बिल्कुल, क्योंकि ये क्या है, मरफू बिला अलिफ। ठीक है, मरफू नजर आ रहा है ना अलिफ के साथ। तो थी हमारे लिए हमारी उख्तानी दो बहनें, तो ये हो गया काना का इसम मरफू। उखरयानी दूसरी, अदर दूसरी दो बहनें, और दूसरी दो बहनें, अनदर टू सिस्टर्स। उखरायानी, अगर आपको याद हो उखरायानी जाहिर है यहाँ पे क्या पोजीशन बन रही है इसकी, नात। वाहिद के लिए आपको याद है पीछे बहुत डिटेल से गैर मुनसरिफ का टॉपिक जब आया था, तो उखरा अलिफ मकसूरा के साथ ना, तो ये वही है। अब तस्निया है ना, तो अलिफ या को ओपन कर दिया और अलिफ नून कसरा लगा दिया, तो ये मीनिंग बन गया। समझ आई? यहाँ भी देख सकते हैं, ये देखें, उखरा दूसरी, अनदर, और उखरा यानी सेम ड्यूल का सीगा, अनदर। सिगारुन का मतलब चाइल्डहुड, तो ये सारे इधर कलिमात दिए हुए। तो अब यहाँ पे वो कहता है कि हमारी दो दूसरी और दो सिस्टर्स थी, तो इसका मतलब अब नहीं है, क्योंकि कानत आ गया ना, थी माजी का सीगा है, तो नात होगी ये, तो खैर इसका हमने एनालिसिस कर लिया, लेकिन अब इसका खबर नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कानत तो फेल और तानीस लना जार मजरूर उख्ता यानी इस्म काना और ये नात, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे काना की खबर माजूफ। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट जुमला, मातता वो दोनों फौत हो गई, फिस से गरीब बचपन में, चाइल्डहुड में, जब वो छोटी थी जाहिर है उस वक्त फौत हो गई। तो मातता, मातत, मातत, तो तानीस और इसके बाद अलिफ लगा देंगे, मातता, तो तस्निया बन गया फीमेल का, तो वो दोनों बहनें, तो अलिफ यहाँ फाइल है जो कि सिस्टर्स की तरफ जा रहा है, जार मजरूर। क्लियर हो गया? चले, कोई नहीं, ऐसी बात नहीं है, सब तस्निया तस्निया आप पढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा आगे चलें। अल मुदर्रिस फी अय्यी कुल्लियतिन, कौन सी फैकल्टी में, कौन सी कुल्लिया में, कॉलेज में, तुरीदानी अन तदरुसा बादा दिरासतिल लुगतिल अरबियती, पूछ रहा है कि कौन सी कॉलेज में तुम दोनों चाहते हो कि तुम पढ़ो बादा दिरासती, अरबी जुबान पढ़ने के बाद, तुम कौन सी कॉलेज में या कौन सी कुल्लिया में पढ़ना चाहते हो। फी हरफजर अय्यी, अय्यी आपको पता है इस्तिफाम, इसमें इस्तिफाम में इसकी खास बात क्या होती है कि ये मुदाफ बनता है और इसके बाद मुदाफिल है, तो ये हो गया ना कौन से कॉलेज में। तुरीदानी, तुरीदानी फेलुन मुदारियुन मरफून बी सबूती नून, तस्निया का सीगा, अलिफ फाइल, अन हरफ नस्बिन व मस्दरीन, किस टाइप का ये मुरक्कब है बताएं, किस टाइप का मुरक्कब है, बहुत पड़ा हुआ है। अन फेलुन मुदारियुन मंसूबुन बी हज़फ़ी नून, जी मस्दर मुअव्वल, बहुत पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ अब तस्निया आ गया अन के बाद, तो ये हज़फ़ी नून, तो ये मंसूब है, अलिफ फाइल, तो ये हो गया मस्दर मुअव्वल। अब इसकी क्या पोजीशन है, तुरीदानी का मफूल, मफूलुन बिही। ओके, बादा फी महल्ली कहेंगे ना नस्बिन, बादा ज़र्फ दिरासती,
اسم मजरूर, और ये मस्तर है, ये यही वाला मस्तर अल लुगाती मुदाफ इलैही और अरबियती नात. ओके, और ये पूरा जुमला हो गया. अल हुसैन, हुसैन कहता है उरीदू, आई वॉन्ट टू स्टडी. अन अदरुसा, मैं चाहता हूँ कि मैं पढ़ूं. टू स्टडी, मैं पढ़ना चाहता हूँ. पढ़ना, अब देखें मस्दर मोवल का ट्रांसलेशन हम कह रहे हैं पढ़ना. सेम उसी तरह ये मफूलन बिही इस फेल का मस्दर मोवल. बिकुल्लियत शरीयती, इस्लामिक लॉ कॉलेज में, इस्लामिक लॉ फैकल्टी में मैं पढ़ना चाहता हूँ. तो ये बी हर्फ जर, कुल्लियती समजरूर व मुदाफ, अशरियती मुदाफ इलैही. तो ये हो गया. अम्मा रही बात अल हसन की, तो हसन क्या चाहता है, फयुरीदु, वो चाहता है, अन यदरुसा, कि वो पढ़े, बिकुल्लियतिल कुरानिल करीम, माशाल्लाह, कि वो कुरान करीम के कॉलेज में कुल्लिया में पढ़ना चाहता है. सेम उसी तरह अम्मा आया, तो इसके बाद फिर अल हसन की पोजीशन क्या होगी बताएं, क्या पोजीशन है इसकी, मुब्तदा, राइट. अम्मा आपको पता है हरफ तफसील, फा अतफ, क्योंकि अम्मा के बाद अतफ आता है उसकी खबर पे. युरीदु फेल मुदारे मरफू, और अन अदरुस युदरुसा, युदरुसा क्या हुआ फिर मस्तर मुअव्वल, और वही सेम इसकी पोजीशन युरीदु के बाद जो भी सीगा है मफूलन बिही फी महल्ली नस्बिन, जार मजरूर मुदाफ इलैही, और ये उसकी नात. नेक्स्ट देखें अल मुदर्रिस, वफ़्फ़का कुमुल्लाहु. वफ़्फ़का ये किस टाइप का कलिमा है, नोट करें. वाओ काफ के ऊपर तशदीद, और फिर उसके बाद फा के ऊपर तशदीद, और उसके बाद काफ फतहा. वफ़्फ़का, और कुमा की साथ ज़मीर, और अल्लाहु इसमें जुलाला. वफ़्फ़का फेल है, और ये मजीद फी ही, अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में आप पढ़ेंगे, मजीद फी की फॉर्म 2 है. जैसे मुजर्रद आपने पढ़े ना, उसके मुख्तलिफ पैटर्न, इसी तरह मजीद फी की फॉर्म 2 है. इसका मीनिंग क्या है, यहाँ देखते हैं वोकैबुलरी में. ये देखें वफ़्फ़का कल्लाहु, यहाँ देखें कुमा की जगह काफ लिखा हुआ है, क्योंकि खिताब की है ना, तो ये चेंज हो सकती है ना ज़मीर. मे अल्लाह ग्रांट यू सक्सेस, अल्लाह कामयाबी दे, तुम्हें अल्लाह कामयाबी दे. तो अब यहाँ पे दोनों से कह रहा है ना टीचर, वो दोनों जो फतह यानी, तो इसलिए कुमा की ज़मीर आ रही है. बहुत खूबसूरत दुआ है. वफ़्फ़का, तो कामयाबी दे, कुमा तुम दोनों को, कौन कामयाबी दे, अल्लाह. तो इसमें जलाला यहाँ फाइल की पोजीशन में है. तो खूबसूरत दुआ है. अल हसनु, हसन, नुरीदु अन नज़हबा इलल मुराकिबी, वी वॉन्ट टू गो टू द सुपरवाइजर. मुराकिब बोलते हैं सुपरवाइजर को, कहते हैं हम सुपरवाइजर की तरफ जाना चाहते हैं. नुरीदु फिर वही फेल मुदारे मरफू बिदम्मा, और ये उन दोनों की तरफ जा रहा है. अन हरफु नस्बिन व मस्तरीन, और नज़हबा मंसूब, और ये 5 इन योर पॉकेट में से है, और मस्तर मुअव्वल मफूलुन बिही फी महल्ली नस्बिन. अल मुदर्रिस टीचर कहता है ला, नो, तज़हबा डोंट गो, इलैही उसकी तरफ नहीं जाओ. क्यों, अल आना राइट नाउ, फ इन्नहु मशगूलुन ही इज बिजी, डोंट गो टू हिम नाउ राइट नाउ बिकॉज ही इज बिजी. ला के बाद तज़हबा, अब समझ जाए, तुम दोनों नहीं जाओ, फेल मुदारे का सीगा है, तो इट मीन्स कि फिर ये ला किस टाइप का है, नून नहीं नजर आ रहा ना, तो हज़फ़ी नून जी. ला कौन सा ला है, नाहिया, रेड लाइट, लाए नहीं, जज़म देने के लिए, तो इसने तज़हबानी को जज़म दिया, हज़फ़ी नून, तो ये मजज़ूम हो गया. अलिफ फाइल, और ये उन्हीं की तरफ जा रहा है. इलैही जार मजरूर मुतल्लिक, ही की ज़मीर किसकी तरफ जा रही है, उसकी तरफ नहीं जाओ. किसकी तरफ, मुराकिब की तरफ. ठीक है, समझ आ रही है, क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह. तो आगे इलैही उसकी तरफ अल आना ज़र्फ, और फिर आगे दूसरा जुमला, क्यों नहीं जाओ, बिकॉज. इन्ना के साथ फा आ जाता है तो फिर क्या मीनिंग बन जाता है, क्योंकि, रीजन हो जाती है. तो क्योंकि वो कौन, वही मुराकिब,
मशगूलुन वो बिजी है, तो इन्ना के बाद हु की ज़मीर इस्मो इन्ना और मशगूलुन इन्ना की खबर मरफू। आगे देखें, युमकिनुकुमा मुमकिन है तुम दोनों, अन तज़हबा के तुम जाओ, इलैही उसकी तरफ, बादा इंतहाइल हिस्सती। कह रहा है कि अभी तो नहीं जाओ लेकिन मुमकिन है कि तुम दोनों के लिए जाना, तुम दोनों के लिए जाना मुमकिन है। कब जाना मुमकिन है? पीरियड के एंड पर, पीरियड के खत्म होने के बाद। युमकिनु बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं, युमकिनु फेल मुदारे मरफू बिदम्मा, कुमा की ज़मीर इसके साथ जो अटैच्ड है इसकी क्या पोजीशन है? मफूलुन बिही। मुमकिन है तुम दोनों के लिए जाना, तो अन तज़हबा फिर वही मस्दर मुअव्वल, राइट, मस्दर मुअव्वल है ना, तो इसकी क्या पोजीशन है यहाँ पे? फाइल। आपको अगर याद हो कि यहाँ अम कना युमकिनु जो फेल था इसके बाद मस्दर मुअव्वल उसका फाइल बनता है, राइट, और साथ जो ज़मीर अटैच होती है ये तो फाइल नहीं बन सकती ना, ये तो हमेशा मफूलन भी ही बनती है। ठीक, चलें, इलैही जार मजरूर मुतल्लिक, ही की ज़मीर फिर उसी तरह मुराकिब की तरफ, बाद ज़र्फ इंतहाई, ये भी मस्दर है, जो भी उसका पीरियड उनका चल रहा था उसके बाद, कि वो कह रहा है उसकी इंतहा के बाद, खत्म होने के बाद फिर उसकी तरफ जाना। ये हो गया आपका जुमला। आगे देखें, इज़हबा जाओ, अल आना राइट नाउ, इलल मकतबती कहाँ जाओ? बुक स्टोर जाओ। इज़हबा फेल अमरिन मबनियुन अला हज़फी नून अमर, और यहाँ फाइल कौन सा है? अलिफ, ज़मीर मुत्तसिल अलिफ फाइल मरफू। अल आना ज़र्फ, इलल मकतबती जार मजरूर मुतल्लिक फेल। व खुजा और तुम दोनों लो, अल कुतुबल मुकर्ररता किताबें मुकर्रर, मुकर्रर का क्या मतलब होता है? मुकर्रर का मतलब फिक्स, यानी सिलेबस की बुक्स, तुम्हारी जो कोर्स की बुक्स हैं वो लो। गो नाउ टू द स्टोर, बुक स्टोर, एंड टेक कोर्स बुक्स, बुक्स कोर्स की बुक्स लो। खुजा, खुजा देखें तस्निया का सीगा कौन सा वाला? अमर, याद है आखजा या खुजूब किया था आपने तो उसे अमर बनाया था, हमजा ड्रॉप हो जाता है, तो यहाँ अलिफ इसमें फाइल, अल कुतुबा ज़ाहिर है ये मुतअद्दी है, कुतुबा मफूलुन बिही, अल मुकर्ररता नात, और नात देख लें वाहिद मुअन्नस आई है, क्यों? क्योंकि गैर अकिल की जमा। सुबहान अल्लाह, तो जुमला फेलिया दोनों, जुमला फेलिया अमर है। तो ये आपका हो गया लेसन अल्हम्दुलिल्लाह खत्म। क्या पढ़ा? तस्निया का फेल, तस्निया की ज़मीर, तस्निया का फाइल, सब तस्निया तस्निया तस्निया, मुत्तसिल ज़मीर, मुनफसिल ज़मीर, जोन जोन सी ज़मायर, जोन जोन से हिस्सा में सब तस्निया आपने पढ़े, अमर के सीखे। तो इसमें बेसिकली आपने तस्निया की प्रैक्टिस की। अब इसके लिए छोटी छोटी सी एक्सरसाइजेज हैं और मैं चाहूंगी वो सारी छोटी छोटी एक्सरसाइजेज आप खुद करें, क्योंकि तब आपको फिर इसका फायदा होगा। सबसे पहली एक्सरसाइज हमेशा की तरह सिर्फ 5 सेंटेंसेस हैं और इसमें लेसन में जो भी वो है इंफॉर्मेशन उसका जवाब देना है। जैसे यहाँ देखें, उन दोनों का नाम पूछा, उन दोनों का नाम क्या है जो फतेह यानी है। ज़ाहिर आपको पता है हसन और हुसैन है, लेकिन आप यहाँ पे फिर प्रॉपरली जवाब दें, मतलब जुमले की शक्ल में ना। तो ये आप लोग खुद करेंगे, ये आप ग्रुप में नहीं करेंगे, ये एक्सरसाइज ये आप खुद करेंगे। इसके बाद नंबर 2, अब आप ग्रुप की एक्सरसाइजेज नोट करते जाएं, बहुत आसान है, लेसन भी ज़ाहिर आसान था लेकिन मैंने फिर भी आपको एक एक जुमला करवा दिया। नंबर 2 में क्या करना है? दा फिल फरागी फी कुल्ली जुमलतिन मिम्मा यातिल फेला ज़ाहबा अल मादिया बादा इस्नादिही इला ज़मीरिल मुनासिबी। फिलिंग द ब्लैंक है, ये आपके सामने है। इसमें आपने इस रूट वर्ड से ज़ाहबा, यह हमेशा आप इसी रूट वर्ड से करते हैं, इस रूट वर्ड से माजी लिखना है लेकिन तस्निया। वैसे मैंने बता दिया, यहाँ उन्होंने लिखा नहीं होता, सूटेबल फॉर्म यानी कि सीगा कौन सा उसके मुताबिक, तो सवाल के मुताबिक। अब जाहिर है खालिदुन व हामिदुन, अईना खालिदुन व हामिदुन, खालिद और हामिद कहाँ हैं?
تو جواب دینا ہے کہ وہ دونوں گئے ہیں بک سٹور. سمپل. تو ظاہر ہے ادھر ماضی لکھیں گے لیکن ذہبا فعل سے. اسی طرح آمنہ اور اس کی بہن اور اسی طرح باقی. اونلی 4 کوشچنز ہیں اور اس میں 3 صیغے ماضی کے لکھنے ہیں. سو سمپل سو ایزی. بچوں والی ایکسرسائز ہے آپ کے لیے جتنی محنت آپ نے کی ہے. نمبر 2 سیم یہی یہاں ایکسپلینیشن ہے. فرق کیا ہے؟ فعل مضارع. وہاں ماضی کے صیغہ تھا تثنیہ کا، یہاں فعل مضارع آپ نے لکھنے ہیں. یہ بھی 4 سینٹینسز ہیں. سو ایزی. فعل مضارع کے ظاہر صیغے ڈفرنٹ ہوتے ہیں نا تثنیہ کے ماضی کی نسبت، تو وہ آپ نے یہاں لکھنے ہیں. یہ الحمدللہ ایزی. یہ بھی آپ ایکسرسائز کریں گے اپنے گروپ میں. یہ ساری ایکسرسائز گروپ میں کیونکہ بہت ایزی ہیں یہ نا. نمبر 4 میں کیا کرنا ہے؟ سیم روٹ ورڈ سے امر اور صرف دو سینٹینسز ہیں، 2 امر کے صیغے حکم دینا ہے. اخوانی اور بنتانی، 2 بھائیوں کو اور 2 بہنوں کو. تو اس کے مطابق آپ کو پتا ہے امر بنانے کے لیے زیادہ اچھا ہوگا کہ اگر آپ مضارع کا صیغہ لکھ کے اسے امر بنائیں، پھر آپ کو زیادہ اچھے طریقے سمجھ آئے گی نا، کیونکہ امر ظاہر اس میں حکم دیا جاتا ہے نا، لیکن فعل یہی استعمال کرنا ہے ذاہبا سے. یہ ہوگی 4. یہ تو بالکل بچوں والی ایکسرسائز تھی. اب آ جائیں 5. یہ بھی ایزی ہے بہت زیادہ. اس میں بھی فیلنگ دی بلینک کرنی ہے، لیکن اس میں کیا کرنا ہے؟ یہ آپ کے سامنے یہ یوریدانی، سب میں یوریدانی. یہ وہی مصدر مؤول والی ایکسرسائز اگر آپ کو یاد ہو تو یہاں پہ ان ہے سب میں، اور آگے فعل بھی دیے ہوئے ہیں، نوٹ کریں. ایزی. بس آپ نے ان افعال کو یہاں یوز کرنا ہے اور منصوب کرنا ہے، بس کچھ بھی نہیں کرنا. تو مصدر مؤول کی پوزیشن ساتھ بتانی ہے. تو یہ بھی آپ کی ایکسرسائز ہے. سو ایزی. 6 میں کیا کرنا ہے؟ 6 میں بھی کچھ ایسا ہی کرنا ہے لیکن تثنیہ ہی کرنا ہے، لیکن اس میں ضمیر استعمال کرنی ہے، مناسب ضمیر. اب یہاں دیکھیں فرسٹ سینٹنس، ارعیتا، رعیتا، حمزۃ الاستفہام ہے، آگے فعل رعیتا، کیا تم نے دیکھا؟ کس کو دیکھا؟ الطالبین. اب یہ دیکھیں تثنیہ کا صیغہ آ گیا منصوب، کیونکہ آپ نے ابھی تک تو مرفوع پڑھا تھا نا الف کے ساتھ. الطالبانی، طالبانی. اب اس کو اگر منصوب کرنا ہو تو آپ کو پتا ہے کہ کیا کرتے ہیں؟ الف کی جگہ کیا لگائیں گے؟ یا، کیونکہ ظاہر یا سے چینج ہو جاتا ہے نا. طالبینی. اعراب رفع کی علامت الف اور مجرور اور منصوب کی علامت کیا ہوتی ہے؟ یا. یہ بہت ڈیٹیل سے میں آپ کو کروا چکی ہوں لاسٹ فرسٹ بک میں بھی سیکنڈ میں بھی. تو طالبینی منصوب ہے کیونکہ یہ منصوب بالیا حرف کا اعراب ہے. اسی طرح اس کی نعت دیکھیں، الجدیدین، الجدیدو سے الجدیدین. تو یہ دونوں نعت، یہ منصوب حالت ہے دونوں کی کیونکہ یہ مفعول بھی ہے. تو پوچھ رہا ہے کیا تم نے 2 نئے اسٹوڈنٹس دیکھے؟ جواب ہے یس رأیتو، میں نے ان دونوں کو دیکھا. تو اب رئی تو ہو گیا فاعل، میں نے دیکھا. کس کو؟ مفعول چاہیے، ضمیر. تو کون سی ضمیر لگے گی بتائیں؟ ان دونوں کو. غائب تثنیہ، متصل ہما کی ضمیر، ان دونوں کو دیکھا، مفعول بھی. سمپل. یہ تو بہت آپ نے پیچھے مفعول بھی کے چیپٹر میں کیا ہے نا. نمبر 2 اقرأت ہاتین المجلتین، کیا تم نے پڑھا یہ 2 میگزین؟ کیا تم نے پڑھے؟ جمع تثنیہ میں بولیں گے نا، یہ 2 میگزین. اشارہ. اب یہ تھوڑا سا غور کرنے کی بات ہے کیونکہ تثنیہ اسم اشارہ آپ نے نہیں کیا. آپ کو یاد ہے تثنیہ میں اسم اشارہ تو مبنی ہوتا ہے، لیکن تثنیہ میں کیا ہوتا ہے؟ معرب. رائٹ. حاضی کا تثنیہ کیا ہوتا ہے؟ ہاتانی. حاضی کا رائٹ. ہاتانی. اب ہاتانی کو جب آپ چینج کریں گے منصوب حالت میں تو یہ الف یا میں چینج ہو جائے گا، تو یہ بن جائے گا ہاتینی. کیوں ہے یہ منصوب؟ کیونکہ ظاہر مفعول بھی ہے. کرا فعل متعدی ہے نا. کیا تم نے پڑھا؟ کیا پڑھا؟ یہ کیا؟ المجلتین. مجلتن
मुअन्नस होता है ना, तो उससे तस्निया बनाया मजल्लतैनी, तो ये बदल है क्योंकि इसम इशारा के बाद आ रहा है ना अलिफ लाम वाला। अब ये तस्निया इतना इस्तेमाल नहीं होता इसलिए उससे फेमिलियर नहीं होते हम ना। तो ये मरफू हालत है अलिफ के साथ और ये मंसूब हालत है, मजरूर भी ऐसे ही होगी। नाम यस, वो कहता है मैंने पढ़े, क्या पढ़ा, करा तू, मैंने पढ़ा उन दोनों को, किसको, मैगजीन। तो वो दोनों के लिए कौन सी जमीर आएगी, यहाँ तो हुमा की जमीर आई थी, तो यहाँ क्या आएगा, तस्निया के लिए मोनस के लिए सेम हुमा, क्योंकि तस्निया में दोनों सेम इस्तेमाल होता है ना कि मैंने पढ़ा उन दोनों को, यस मैंने उन दोनों को पढ़ा, आई रेड टू मजल्ला। नंबर 3, कालल मुदरिसु लिहामिदिन व सदीकी ही, टीचर ने कहा हामिद और उसके दोस्त से, अब ज़ाहिर दो हैं हामिद और सदीकी, क्या कहा, राई तू, आई सॉ, मैंने देखा तुम दोनों को, ज़ाहिर इन दोनों से कह रहा है ना, मैंने देखा तुम दोनों को, कहाँ देखा, मस्जिद में, अल बारिहती लास्ट नाइट। तो अब बताएं तुम दोनों को कौन सी जमीर आएगी इसके साथ, मुखातब की कौन सी जमीर आनी चाहिए, हामिद और सदीक, कुमा, कुमा की जमीर, ठीक है, का कुमा कुम, याद है ना, बहुत याद करवाया हुआ है मैंने। तो कुमा की जमीर मफूलुन बिही, तू की जमीर फाइल, सब सेम फेल इस्तेमाल हो रहे हैं। नंबर 4, कालत कहा, अल मुदीरतु प्रिंसिपल ने, ली ज़ैनबा व मरियमा, फीमेल प्रिंसिपल ने ज़ैनब और मरियम से कहा, क्या कहा, उरीदु, आई वॉन्ट, अन असअल, आई वॉन्ट टू आस्क, मैं पूछना चाहती हूँ, किससे, तुम दोनों से। अब यहाँ जमीर कौन सी आएगी जरा बताएं, किस बारे में, अन बलदी, तुम्हारे, तुम दोनों के कंट्री के बारे में, कि मैं तुम्हारे कंट्री के बारे में पूछना चाहती हूँ। अच्छा, उरीदू जाहिर है आपको पता है फेल मुदारे मरफू बिदम्मा, 5 इन योर पॉकेट, और आगे अन असअल। अब इसके बाद कौन सी जमीर, तुम दोनों से, और जो जमीर का आपको पता है मर्जे यहाँ पे सदीकी और उसकी तरफ जा रहा है, यहाँ मरियम और ज़ैनब की तरफ जाएगा, तो फीमेल तस्निया की क्या जमीर है, बताएं, हरी आप सब बताएं। कुमा, सेम जमीर, क्योंकि तस्निया सब सेम होते हैं, आपको बताया था ना, तो अस अला कुमा ये आएगा यहाँ, ठीक। अन बलदी, तुम दोनों के कंट्री, तो सेम यहाँ भी कुमा, ठीक है। अब बलदी के साथ ज़ाहिर दाल के साथ कुमा की जमीर अटैच नहीं हो सकती, लेकिन है ये मुत्तसिल जमीर ना, राइट। यहाँ पे इसकी क्या पोजीशन है, मुदाफ इलैही, बलदी कुमा, तुम दोनों का कंट्री। यहाँ पे इसकी क्या पोजीशन है, कुमा की, मफूलुन बिही, मैं पूछना चाहती हूँ, क्या पूछना चाहती हूँ, तुम दोनों से, तो यहाँ पे ये इस तरह से। तो ये बहुत खूबसूरत एक्सरसाइज थी, मैंने सोचा मैं आपको खुद करवा दूं ताकि जमायर की तस्निया की, दो गायब के जमायर और दो हाजिर के, दोनों तस्निया के, और दोनों उसके लिए सेम इस्तेमाल हो रहे मुअन्नस मुज़क्कर। नंबर 7 एक्सरसाइज आपको करनी है, क्योंकि ऊपर की तो बहुत इजी है, ये भी इजी है, लेकिन इसमें थोड़े डिफरेंट अफाल हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ ये भी आप अपने ग्रुप में करें। इसमें क्या करना है, सवाल हैं उनके जवाब देने हैं। मसलन यहाँ देखें, मता खराजा अहमदू व अखूहु मिनल फसली, कब निकला अहमद और उसका भाई क्लासरूम से। तो अब दो लोगों के बारे में बात हो रही है ना कि कब निकला, तो उसके लिए देखें खराजा, उन्होंने पहले फेल दे ही दिया ताकि आपको हिंट मिल जाए कि वो दोनों निकले, माजी का सीगा, कहाँ से निकले, क्लासरूम से, और कब निकले वो आप कुछ भी लिख सकते हैं कि टीचर के निकलने के बाद, टीचर के निकलने से पहले, पीरियड के बाद, जो भी लिखना चाहें वो आगे आप कर सकते हैं। मेनली इसमें फेल के सीगों की प्रैक्टिस है। अब यहाँ डिफरेंट दिया हुआ है, यहाँ मता ज़हब तुमा इला मक्का था कि तुम दोनों मक्का कब गए, ज़हाबा फेल और तुमा की ज़मीर फाइल। अब उसका जवाब देना है, हम दोनों गए। अब इसका जरा आप तस्निया का सीगा लिखेंगे ना, हम दोनों, यहाँ तुमा है, वहां आप मुतकल्लिम का सीगा लिखेंगे,
जो तस्निया के लिए इस्तेमाल होता है, इसी तरह ये। तो ये वाली एक्सरसाइज थोड़ी सी गौर तलब है, ऊपर तो बिल्कुल हलवा एक्सरसाइज है, इसमें थोड़ा सा आपने इन अफाल से तस्निया इस्तेमाल करने, जवाब देने हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये वाली एक्सरसाइज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। नंबर 8, तामल मा याती। गौर करें जो नीचे आ रहा है ये, अब मैं क्या आपको गौर कराऊं, हजारों दफा आप गौर कर चुके हुए हैं। मुदारे मरफू सारे नून वाले सीगे, ये जो नून वाले सीगे हैं इन सबको क्या बोलते हैं, अफालुल खमसा। वैसे ये 7 है, 7 होते हैं, लेकिन चूंकि तस्निया का इधर एक ही दिया हुआ है, जबकि ये यानी 2 दिए हुए हैं, एक गायब और ये, लेकिन इसके टोटल 7 होते हैं ना, तो इसका मतलब 3 सीगे तस्निया के इसमें से मिसिंग है जो सेम है। अब यहाँ देखिए ये मरफू हालत में, तो रफा की अलामत आप सबको पता है क्या है, क्या है, सबूती नून, राइट। अच्छा, नेक्स्ट वाले में देखें, अलमुदारे मंसूब लन, यज़हबा लन नसब देने का है, तो ये सारे नून वाले थे ना, ये वाले सेम सीगे, तो क्या हुआ यहाँ पे सब में, क्या हुआ, हज़फी नून सब में, ठीक है ना, एक ही जैसे है ना सारे, तो सब में हज़फी नून। थर्ड में देखें, थर्ड वाला क्या है, मजजूम, मुदारे मजजूम, लम की वजह से, लम जज़म की है, तो यहाँ भी सेम उसी तरह हज़फी नून, दोनों में कोई फर्क नहीं होता है मंसूब और उसमें, लेकिन इसके जो आमिल हर्फ है उससे पता चल जाता है। हाजी ही हिया, ये वो अफालुल खमसतु के अफालुल खमसा है, अफाल ज़ाहिर गैर अकिल की जमा है, इसलिए उसके लिए नात भी वाहिद मोनस आई, हिया भी वाहिद मोनस और इसम इशारा भी। तो ये बता रहे हैं कि ये सारे अफालुल खमसा हैं, और चूंकि नून वाले हैं, 7 जमा के भी दे दिया, लेकिन एक्चुअली तस्निया पे टारगेट है। इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन भी इन्होंने यहाँ दी हुई है। एराबुल अफालुल खमसती, अफालुल खमसा का एराब, तो रफाऊ बिसबूत नूनी, कि रफा दिया जाता है बी सबूती नून, नून की मौजूदगी, सबूत जो है वो रफा के लिए है, यह अब अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके। व तुन सबू तुजजिमु भी हज़फी नूनी, तुन सबू और तुजजमु यानी नसब और जज़म दिया जाता है भी हज़फी नूनी, यानी नसब और जज़म के लिए नून को हज़फ किया जाता है। तो ये आपके सामने है, नीचे वो इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है, दीज आर द 5 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, 5 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब की 5 फॉर्म्स हैं, सीगे हैं। द साइन ऑफ देयर बीइंग मरफू इज द प्रेजेंस ऑफ द फाइनल नून, फाइनल नून का मतलब कि जो एंड पे नून आ रहा है वो फाइनल नून उसको कहते हैं ना। एंड द साइन ऑफ देयर बीइंग मंसूब एंड मजरूर इज द ओमिशन ऑफ द नून, कि वो जो नून एराबी है उसको हज़फ कर दिया जाता है, तो वो फिर नसब और मजरूर का अलामत होती है। तो ये हो गया आपका लेसन कंप्लीट। सेम वही सीए यहाँ भी दिए हुए हैं, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे देख लें आप, तस्निया हर जगह आपको तस्निया, इसम है तस्निया, माजी है तस्निया, फीमेल तस्निया, जमीन जमीर तस्निया, सारे सीगे तस्निया के। ओके, फिर इसी तरह मुदारे के सीगे तस्निया के, ये अभी आप एक्सरसाइजेस करेंगे ना तो उसमें आपकी प्रैक्टिस होगी। लम के साथ, अन के साथ सेम अभी सीगे मैंने ऊपर बताए, तस्निया, हज़फी नून। अफालुल खमसा की डिटेल यहाँ भी, अमर, अमर के लिए भी देख लें तस्निया, सबके लिए एक ही सीगा। जमीरें, गायब की जमीर, हाजिर की जमीर, मुतकल्लिम की जमीर, सब तस्निया, एवरीथिंग तस्निया का। फिर उसके बाद आगे मुतसिल, मुतसिल जमायर, हुमा, ये जिसके साथ भी अटैच करें, कुमा, ना, ये 3 ही है ना मुतसिल जमायर, ये सब तस्निया के लिए, चाहे मफूल बन रहे हैं, चाहे मजरूर हैं, मुदाफ इलैही हैं या मफूलन भी हैं। नंबर 2 पॉइंट अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी हम कर चुके, और आपके लेसन की वोकैबुलरी आपके सामने, ये भी मैं आपको करवा चुकी। तो क्या ख्याल है, तस्निया पढ़ पढ़ के कुछ तस्निया हो गया होगा, तस्निया की डिजीज नहीं लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप तस्निया आपको नहीं भूलेगा, क्योंकि जितनी आपने प्रैक्टिस माशाल्लाह से कर ली है। तो बस यही आपका लेसन था, कोई नई चीज़ नहीं पढ़ी, सब ऑलरेडी मैं आपको एडवांस में पहले ही पढ़ा चुकी हूँ।
सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अद-दर्सुल हादी अस-सालिसूना और न्यू मदीना बुक 5 का लेसन नंबर 11 ये करेंगे और ये लेसन आपका बुक 2 का लास्ट लेसन है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से ओल्ड बुक 3 स्टार्ट करेंगे। अद-दर्सुल हादी अशरा लेसन 11 लेसन 11 न्यू बुक 5 का है जो कि लास्ट लेसन है। जैसे मैंने आपको बताया इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप बुक 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो लास्ट लेसन होता है आपको पता है उसमें कोई नया रूल नहीं होता, ज्यादातर आमतौर पे उसमें जो प्रीवियस आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज किया जाता है। और ये जो 11 नंबर लेसन है ये 10 नंबर लेसन की कंटिन्यूएशन है। तो चलें इसको पढ़ते हैं। अल मुदर्रिस टीचर ऐन तालिबानिल जदीदानी कहाँ हैं दो नए स्टूडेंट। यही टॉपिक आपने लास्ट लेसन में पढ़ा है। क्या तस्निया, तस्निया के मुख्तलिफ सीगे यहाँ भी वही हैं। अल जदीदानी नात है और ये तालिबान किसकी तरफ इशारा है। लेसन नंबर 10 में जो फतायानी था, दो नए स्टूडेंट जो आए थे। अलियुन अली हुमा फिल मकतबा थी, वो कहाँ गए हैं, वो कहाँ हैं, बुक स्टोर में हैं। दे आर इन बुक स्टोर। हुमा की ज़मीर तस्निया की, सब तस्निया, फिल मकतबा जार मजरूर मुतल्लिक खबर महजूफ। यहाँ पे ये जुमला इसमिया खत्म हो जाता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट जुमला है ज़हाबा, ज़हाबा लियअख़ुज़ा अल कुतुबल मुक़र्ररता। ज़हाबा से आपने लास्ट लेसन में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस की हैं, इसलिए आपको अब इसकी अच्छी तरह पहचान होगी कि इसमें अलिफ किस चीज़ की अलामत है। किस चीज़ की अलामत है बताएं। फाइल, ज़मीर मुत्तसिल। तो ये तस्निया के वो दोनों गए हैं। दे वेंट, दे टू वेंट। लियअख़ुज़ा ये किस टाइप का कलिमा है। इसमें अगर आप नोट करें तो शुरू में क्या आ रहा है, ली। तो ली आपको पता है क्या हर्फ जार है। और उसके बाद ली के बाद क्या है, फेल। और वो कौन सा है, फेल मुदारे। और ये टॉपिक आप बहुत ज्यादा अगर आपको याद हो तो कहाँ पढ़ा था, जहाँ पे मस्तर मावल पढ़ा था। ठीक है, तो ये आपके सामने ली या खुजा। तो ली हर्फ जार और उसके बाद फेल मुदारे। अब या खुजा में अगर आप अलिफ देखें और आखजा फेल है या मुदारे की अलामत, तो ये फिर कौन सा सीगा है, कौन सा सीगा है, तस्निया। यहाँ नून था तो नून कसरा के साथ तो वो हजफ हो गया। या खुजानी क्यों हजफ हुआ, क्या वजह है, जाहिर है हजफ होने की, या तो जज़म या मंसूब। तो यहाँ ली तो हर्फ जार है, तो हर्फ जार तो अमल तो करता है लेकिन वो तो मजरूर करता है ना, फेल पे तो अमल नहीं करता। तो याद है आपको कि ये ली किस टाइप का है। इसका है तो हर्फ जार लेकिन ये इल्लत का मीनिंग दे रहा है। लाम ऑफ रीजन इसको कहते हैं, तालील का। तो इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, अन मुजमिरा। ये रूल आप बहुत अच्छी तरह कर चुके हैं। अन मुजमिरा, अन ने यहाँ नसब दिया फेल मुदारे को और फिर उस नसब से क्या हुआ कि हज़फ़ी नून। नसब की अलामत क्या है, हज़फ़ी नून। तो ली हर्फ जार अन मुजमिरा और या खुजा, और इसमें अलिफ, ये जो अलिफ है ये क्या है, फाइल। और तस्निया का फाइल, ड्यूल का फाइल। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे ली चूंकि हर्फ जार है तो फिर इसलिए अन मुजमिरा और ये पूरा जो फेल है ये मिलकर इसकी क्या पोजीशन होगी, मस्तर मोवल। और फिर इसकी पोजीशन क्या होगी, इसम मजरूर। ठीक, क्योंकि मस्तर है ना, तो ये अब इसम मजरूर ली की वजह से मजरूर है। फी महल्ली जर, मस्तर मोवल की डिफरेंट पोजीशंस होती हैं। तो फिर क्या मीनिंग हो गया, ज़हाबा दे वेंट टू टेक, टू टेक वो गए हैं, निकल गए हैं कहाँ गए हैं, मकतब में, बुक स्टोर में, लेने के लिए। क्या लेने के लिए, अल कुतुबा। मंसूब, क्यों मंसूब है, मफूलुन बिही, किसका मफूल, या खुजा का। अल मुकर्रराता ये लास्ट लेसन में गुजरा था, मंसूब है क्यों, क्योंकि ये नात है कुतुब की, यानी कोर्स की नोटबुक, कोर्स बुक्स लेने के लिए गए।
تو یہ آپ کے سامنے دو فعل آگے، دونوں تثنیہ کے ہیں، جملہ فعلیہ ہے اور آگے مصدر مؤول جار مجرور متعلق فعل۔ چلیں تو یہ ہو گیا آپ کا ایک خاص قسم کا۔ آگے چلتے ہیں۔ المدرس متا ذہبا، کب گئے وہ دونوں؟ ٹائم پوچھ رہا ہے، متا اسم استفہام اور آگے ذہبا، ذہبا پھر وہی تثنیہ کا صیغہ، علیون علی ذہبا فی الحصۃ الثانیۃ۔ جی ثانیتی آپ کو پتا ہونا چاہیے کون سا نمبر ہے، حصۃ ثانیتی سیکنڈ۔ تو حصہ جو ہے ظاہر عدد ہے نا، ثانیتی حصہ پیریڈ کو بولتے ہیں، ٹھیک۔ تو وہ کہہ رہے ہیں ذہبا دے وینٹ، کب گئے ہیں؟ ان دا سیکنڈ پیریڈ، سیکنڈ پیریڈ میں وہ گئے ہیں۔ ذہبا پھر وہی الف فاعل طالبانی کی طرف جا رہا ہے، فی حصتی مجرور جار مجرور متعلق فعل، ثانیتی نعت، کس کی نعت ہے یہ؟ پیریڈ کی، حصہ کی، ٹھیک ہے۔ یا استاذو، او استاد، اریدو ان اشتریا معجمن عربین، او استاد میں چاہتا ہوں، مجھے چاہیے کیا؟ ان اشتریا کہ میں بائے کروں، معجمن معجم عربی۔ استاد سے اسٹوڈنٹ علی پوچھ رہا ہے I want to buy a dictionary، کون سی والی؟ عربک ڈکشنری۔ اچھا اریدو جیسے کہ آپ کو پتا ہے فعل مضارع مرفوع حالت میں آپ کو ضمہ نظر آ رہا ہے، ان پھر آ گیا اشتری، یا کے اوپر فتح آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ پھر کس ٹائپ کا کنسٹرکشن ہے، مصدر مؤول، یا کے اوپر فتح۔ اچھا اشتری جیسے آپ کو پتا ہے کہ یہ مزید فی کی فارم ہے، انشاءاللہ نیکسٹ بک میں آپ پڑھیں گے، وہاں اس کی ڈیٹیل ہم دیکھیں گے، ویسے میں آپ کو بتا چکی ہوں پیچھے لاسٹ بک میں۔ تو ان نے اس کو منصوب کیا اور یہاں آپ کو فتح نظر آ رہا ہے۔ معجمن منصوب ہے، کیوں منصوب ہے معجمن؟ کیونکہ یہ کیا وجہ ہے اس کے منصب ہونے، کیا پوزیشن ہے؟ میں چاہتا ہوں خریدنا، کیا خریدنا؟ معجمن، تو مفعول بھی کس کا مفعول ہے؟ آبجیکٹ اس فعل کا، اور عربین نعت کس کی؟ ڈکشنری کی، عربی ڈکشنری خریدنا چاہتا ہوں۔ تو اب مصدر مؤول کی بھی پوزیشن کیا ہوگی؟ پھر مفعول بھی، لیکن وہ کس کا مفعول ہے؟ اریدو ان تدلنی علی معجب جید۔ جملے میں آپ کے لیے ایک نیا کلمہ آیا، نیا فعل۔ سب سے پہلے دیکھیں اریدو، آئی وانٹ پیچھے بھی گزر چکا ہے، میں چاہتا ہوں، ان کے تدلنی کہ آپ مجھے گائیڈ کریں، میری رہنمائی کریں، کس چیز کے بارے میں؟ علی معجم جید، اچھی ڈکشنری کے بارے میں، اچھی ڈکشنری، گڈ ڈکشنری پر میری رہنمائی کریں، مجھے گائیڈ کریں۔ اچھا اریدو سیم فعل مضارع مرفوع، ان حرف تدلنی، یہ میں نے لکھا ہے یہاں پہ یہ الگ الگ کر کے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ تا مضارع کی علامت، دلہ، دلہ یہاں پہ فعل، فعل کون سا؟ فعل مضارع، ظاہر تا مضارع کی علامت، اور اس پہ فتحہ جو ہے یہ کس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ یہ منصوب ہے، یہ دال لام لام روٹ ورڈ اور نون الوقایا اور یا متکلم، یا متکلم کی کیا پوزیشن ہوئی؟ کیا پوزیشن ہوگی؟ آپ رہنمائی کریں میری، مفعول بھی جس کی رہنمائی، اور انتا کی ضمیر مستتر، اور وہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ ٹیچر کی طرف، اور کیا کون رہا ہے؟ علی، ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا۔ تو اس کا روٹ ورڈ ہے دال لام لام، دلہ یا دلو اور تدلو، مطلب ٹو ڈائریکٹ، ٹو گائیڈ، ٹو سجیسٹ، کوئی بھی اس کا ٹرانسلیشن کر سکتے، ٹو گائیڈ، ٹھیک، کہ میری رہنمائی کریں۔ علی حرف جر اور معجمن اسم مجرور اور جیدن اس کی نعت، اور مصدر مؤول جو ہے یہ بھی مفعول بھی ہی ہے، فی محلی نصب اریدک، ٹھیک ہے، نیا آپ کے لیے آ گیا ایک کلمہ۔ اور یہ کس ٹائپ کا ہے؟ دلہ، دال لام لام کس ٹائپ کا ہے؟ مضاعف، ابھی آپ نے پیچھے پڑھا ہے نا۔ المدرس اشتری، اشتری المعجم الوسیط فإنه معجم جید۔ اچھا جی اشتری، کیا خیال ہے آپ کو کس ٹائپ کا کلمہ ہے؟ یہی والا فعل ہے اشتریا، تو لیکن اس سے پھر اشتری، امر، امر ہے
कहता है बाय करो, खरीदो। क्या खरीदो? अल मौजमा, मौजम, अल वसीता, ये एक डिक्शनरी का नाम है। अल मौजम वसीत, ये बड़ी फेमस डिक्शनरी है अरबी की, उसका नाम है मौजमुल वसीत। तो वो कह रहा है ये वाली खरीदो। फाइन नाउ बिकॉज इट इज मौजमुन जय्यदुन, क्योंकि वो बहुत अच्छी डिक्शनरी है, इट इज गुड डिक्शनरी। इश्तरी फेलु अमरिन, तुम खरीदो। नोट करें जरा, तुम खरीदो। तो अमर में अंता का सीगा है ना ये, तो एक्चुअली ये अब जाहिर है मजीद फी ही है, लेकिन इसका रूट वर्ड आपको पता है क्योंकि पीछे भी गुजर चुका है, शीन रा या, तो या तो नहीं है यहाँ पे, तो इट मीन्स कि ये नाकिस है। और नाकिस का रूल अभी अभी आपने पढ़ा है कि अमर में क्या होता है, हज़फी हरफी इल्ला। तो यहाँ पे इश्तरिया था, तो जब इसको हजफ किया, और जाहिर है इससे पहले मुदारे की अलामत हजफ की, तश्तरिया था, तो ता मुदारे की अलामत हजफ की और यहाँ से या हजफ हो गई। तो आप बोलेंगे फेलो अमरिन मबनियुन अला हजफी हरफी इल्ला, और अंता की ज़मीर मुस्ततिर जो किसकी तरफ जा रही है, अली की तरफ। मौजमा मंसूब है मफूलुन बिही, अलवसीता नात मौजम की। फा इन्ना बिकॉज, हु की ज़मीर इसमो इन्ना, मौजमुन खबरू इन्ना, और जय्यदन नात, क्योंकि वो क्या डिक्शनरी, हु की ज़मीर किसकी तरफ जा रही है, मौजम की तरफ। अहमदु अहमद, अल यौमा यंतही अल जुज़्उ सानी। अच्छा, अल यौमा आज, यंतही नून हा या रूट वर्ड है, ता बीच में है, ये भी मजीद फी, आपको आहिस्ता आहिस्ता मजीद फी की पहचान हो रही है। ता इसके अंदर जो नजर आ रही है ना, ये मजीद फी की अलामत है। ठीक है, बस फिलहाल माना करते हैं आप। ठीक है, यंतही, इंतहा का लफ्ज सुना हुआ है, उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। तो इंतहा का मतलब क्या होता है, एंड, खत्म होना, किसी चीज की एंड होना। तो ये कह रहा है आज इंतहा है, खत्म हो जाएगा क्या, अल जुज़उ, अल जुज़उ सानी, सेकंड वॉल्यूम। जुज वॉल्यूम को बोलते हैं ना, कि आज सेकंड वॉल्यूम खत्म हो जाएगा। मता कब, नबदाउल जुज़उ सालिसा, कब हम शुरू करेंगे थर्ड वॉल्यूम, when we will start third volume, second volume ending today, when we will start थर्ड वॉल्यूम। अच्छा, अल यौमा ज़र्फ है, शुरू में आ रहा है, यंतही फेल मुदारे का सीगा, अल जुज़उ फेल मुदारे मरफू है, लेकिन यहाँ दम्मतुल मुकद्दरा क्योंकि उस ड्रॉप हो गया हुआ है। अल क्योंकि या है ना, या के ऊपर हैवी होता है। अल जुज़उ फाइल, खत्म हो रहा है, क्या खत्म हो रहा है, जुज़उ, एंड हो रहा है, जुज़। असानी की पोजीशन क्या होगी, नात, सेकेंड वॉल्यूम, लेकिन इस पे अब एराब नजर नहीं आ रहा क्योंकि वो भी या है एंड पे, तो इसलिए दम्मतुल मुकद्दरा क्योंकि मुरक्कब तौसीफी है। मता फिर ज़र्फ आ गया, वैन सवाल पूछ रहा है। नबदाऊ, नबदाऊ अबदा से, नबदाऊ स्टार्ट करना, जिस तरह मुब्तदा है उससे, कि कब हम स्टार्ट करेंगे। नहनु की ज़मीर मुस्ततिर, फिल मुदारे का सीगा, और अल जुज़ा क्या स्टार्ट करेंगे, जुज़ा मफूलुन बिही, असालिसा नात। इजी है ना। लास्ट सेंटेंस देखें, अल मुदर्रिस फिल उसबुइल कादिमी इंशाअल्लाह, फी हर्फ जर, अल उसबुइल कादिमी, ये पहले भी गुजर चुका है, क्या इसका मीनिंग है बताएं। उसबुइल कादिमी नेक्स्ट वीक, उसबू बोलते हैं ना वीक को, कादिमी नेक्स्ट कदम से, इंशाल्लाह। उसने ये नहीं कहा कि हम शुरू करेंगे, बस उसने जवाब दिया है, ज़ारा इसमें सब हज़फ है कि हम शुरू करेंगे जुज सालिस नेक्स्ट वीक में। ठीक है, ये पूरा जुमला वो आगे से जवाब दे रहा है कि हम स्टार्ट करेंगे, ये इंशाल्लाह आगे से जवाब दे रहा है। नक़राउल यौमा, हम पढ़ेंगे आज, अस्सफ़हतैनी अल आखिरतैनी मिनल जुज़ सानी, जी we will read last 2 pages from second volume, from the second volume today. नक़राउ फ़ेलुन मुदारि मरफ़ून बिदम्मा, फ़ाइल मुस्ततिर नहनु, हम पढ़ेंगे।
कब पढ़ेंगे? अल-यौमा आज, मफूलुन फीही अस क्या पढ़ेंगे? सवाल पैदा होता है। सफ़हातैनी, जी क्या कितने पेजेस? सफ़हातुन की तस्निया है ना, सफ़हातैनी कितने पेजेस? 2 पेजेस। नून के नीचे कसरा, तस्निया। और इसकी अराबी हालत क्या है और इसकी पोजीशन क्या है बताएं? अराबी हालत और पोजीशन इसकी जल्दी से। मफूलुन बिही क्या पढ़ेंगे ना, किसका फे मफूल है इसका, और मफूल जो होता है मंसूब होता है, तो मजरूर की अलामत क्या है यहाँ पे, अब बताएं? अलिया। अगर मरफू होता तो बोलता असफहातानी, अब यहाँ असफहातैनी, ठीक। तो या जो है यहाँ पे जर नसब की अलामत है, जर की भी अलामत सेम ही होगी, लेकिन उससे पहले अगर हर्फ जर हो। अल आखिरा तैनी, ये सेम वही मैंने आपको कहा था नेक्स्ट, आखिर के मीनिंग में। तो ये इसकी क्या पोजीशन हो गई? ये भी इसकी नात, ठीक। सफातैन की। मिनल जुज इसानी, जुज सेकंड जुज में से, ठीक। तो असानी ये जुज ई की नात है और यहाँ कसरतुल मुकद्दरा। चलें जी, लेसन यही था आपका, अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया। इतना छोटा लेसन नहीं, ये इसमें नया चीज तो कुछ भी नहीं पड़ी, जस्ट आपने रिवीजन किया। अब आ जाए तमारीन। तमारीन में से वही पहली तमरीन जो है आप खुद करेंगे, यानी अपने तौर पे, ग्रुप में नहीं करेंगे। अजिब अनिल असइलतिल आतियती, सिंपल, इसमें वही लेसन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इनका आप जवाब लिखें। 3 सिर्फ सेंटेंसेस हैं। नंबर 2 देखें, इंदी मौजमुन जय्यदुन, मेरे पास अच्छी डिक्शनरी है, गुड डिक्शनरी है। हुना, वो कह रहे हैं हुना जय्यदुन, जय्यदुन की पोजीशन बता रहे हैं कि वो नात है, ये गुड डिक्शनरी, डिक्शनरी की नात है, राइट। ये तो आपको पता है ऑलरेडी, नहीं कोई मुश्किल बात बताइए। नंबर 2 एक्सरसाइज जो है, इसमें नीचे देखें क्या लिखा हुआ है। एक्चुअली ये एक्सरसाइज नहीं है, ये रूल है। अब मैं आपको पढ़ाती हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी डिफिकल्ट। अन नातु यतबाउल मनऊता फिल उमूर लातियाती। नात, नात आपको पता है सिफ्त को बोलते हैं नात। यतबाउ फॉलो करती है, इत्तबा करती है किसकी? अल मनूत, मनूत की। फिल उमूर लातियाती, इन उमूर में, इन कंडीशंस में नात फॉलो करती है मनूत को, इन कंडीशन में। आपको पता है कि नात मनूत का कहाँ पढ़ा था आपने टॉपिक, कुछ याद है? कहाँ पढ़ा था? बुक 1 में, मुरक्कब तौसीफी का जो पूरा चैप्टर था। तो उधर भी आपने पढ़ा था ना कि नात फॉलो करती है, तबाह करती है मनूत की, कितने लिहाज से? 4 एंगल से। अब वही चीज यहाँ है, अब देखते हैं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले वो कह रहे हैं नंबर 1 फिल एराबी, कि एराब में फॉलो करती है नात। नहवु, एक फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 जुमला, हाजा किताबुन जदीदुन, ये एक नई किताब है। यहाँ पे नात कौन सी है? जदीदुन, ठीक। किसकी नात है? किताबुन की। नेक्स्ट देखें, कराअतु किताबन जदीदन, मैंने पढ़ी नई किताब। नात क्या है यहाँ पे? जदीदन, वहां जदीदुन था, यहाँ जदीदन, मंसूब। नंबर 3 हाजस्मु किताबिन जदीदिन, ये नई किताब का नाम है। तो अब यहाँ जदीदिन, जदीदिन के लफ्ज को हमने देखना है, तो ये क्या है? मजरूर। तो ये तीनों में जदीदिन का जो कलिमा है ये नात बन रहा है, यहाँ किताबुन की, यहाँ किताबन की, यहाँ किताबिन की। तो ये बता रहे हैं अराब में। क्या ये नई चीज है? बहुत मुश्किल है, पहले नहीं पढ़ा हुआ, पढ़ा हुआ है। चले नंबर 2 फिर तस्कीरी व तानीसी। अच्छा, दूसरा किस चीज में फॉलो करती है? तस्कीर और तानीस। तस्कीर और तानीस का मतलब क्या हुआ? मोनस मुजक्कर में, जिन्स में, मतलब, ठीक है, जिन्स के एतबार से। एराब के एतबार से नंबर 2 जिन्स। तस्कीर का मतलब होता है मुजक्कर और मोनस में, ठीक। नहवु एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, अब आगे जुमला देखें, अहमदू लहुबनुन कबीरुन, अहमद उसका बड़ा बेटा है। वह बिन तुन
सगीरतुन, और छोटी बेटी है, यानी बेटा बड़ा है और बेटी छोटी है। तो आप बताएं यहाँ पे नात कौन से कलिमात है? नात कौन सा है? कबीरुन। किसकी नात है ये? किसकी नात है? इब्नुन की नात। सुभान अल्लाह। और दूसरा बताएं, दूसरे जुमले में कौन सी नात है? और ज़ाहिर ये दोनों मुज़क्कर हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में क्या है? सगीरतुन, और ये किसकी नात है? बिंतुन की। तो जाहिर है अब ये कबीरुन मुज़क्कर है, ये मुज़क्कर है इब्नुन, ये दोनों मुज़क्कर है। तो ये इसका मतलब हो गया फर्स्ट एराब में, सेकंड मोनस जिन्स में। नंबर थ्री क्या है? फिल इफरादी, इफराद में यानी वाहिद में, व तस्नियती, और तस्निया, वल जमी, और जमा में। अब ये किस में आ गया? अदद। अदद की तीन कंडीशंस आ गई ना, कि वाहिद, इफराद का मतलब है वाहिद, तस्निया और जमा। आगे फिर एग्जांपल्स दी हुई हैं, इनको देखें। लना मुदीरुन सालिहुन। अब यहाँ पे नात क्या है बताएं? नात क्या है? सालिहुन। सालिहुन जो है क्या मीनिंग है? हमारा अच्छा मुदीर है, प्रिंसिपल है, यानी नेक मुदीर है। तो ये मुदीर की नात हो गई। व मुदर्रिसानी जय्यदानी, और बहुत अच्छे यानी गुड दो टीचर्स हैं। तो दूसरी मुदर्रिसानी अब तस्निया का सीगा है, तो जय्यदानी उसकी नात होगी। ऊपर अभी जय्यदन गुजरा है ना कलीमा। आगे देखें, वजुमलाऊ मुज्तहिदूना। जुमलाऊ, जुमलाऊ जमीलुन की जमा। जमीलुन का मतलब क्लास फेलो, क्लास फ्रेंड्स या क्लास फेलो होगा। जुमलाऊ प्लूरल, और उसकी नात क्या है? मुज्तहिदूना, मेहनती क्लास फेलोस। तो अब ये तीनों नात हैं, और ये अदद के लिहाज से सालिहुन वाहिद है, मुदीर वाहिद है। मुदर्रिसानी तस्निया है, तो ये भी तो तस्निया है। जुमलाउ जमा है, तो उसकी जमा नात। ये जमा तकसीर है, ये जमा सालिम है, लेकिन है उसकी नात है। चले नंबर 4, फित तारीफी व तस्कीरी, यानी मारिफा और नकिरा के लिहाज से। अब मैं कितनी मेहनत से आपको समझा रही हूँ, जबकि ये आपको आता है, लेकिन बहरहाल। अच्छा, तारीफ का मतलब होता है मारिफा, और तनकीर का मतलब होता है नकिरा। इन दी सयारतुन जदीदतुन। तो अब जदीदतुन यहाँ पे नकिरा है नात, क्यों? क्योंकि सयारतुन नकिरा है। अस सयारतुल जदीदतु गालियतुन, यहाँ क्या नात है बताएं? अल जदीदतु, क्योंकि अस सयारतु की नई कार, गालियतुन एक्सपेंसिव है। ऊपर मेरी कार नई, मेरे पास नई कार है। ठीक है। नंबर 3 देखें, ऐना मोहम्मदुन अल याबानियू। अच्छा, कहाँ है याबानी, जापानी मोहम्मद? अब यहाँ पे जापानी होना मोहम्मद की, जापनीज मतलब उसकी क्या है? नात है। तो अब मोहम्मदुन मारिफा है ना, तो अब उसके लिए मारिफा नात लाना है। तो ज़ाहिर है उसकी जो बताई जा रही है नात, वो क्या? जापानी, यानी पाकिस्तानी जापानी, ये नात बनता है ना, तो ये नात है। और ये मारिफा है अलिफ लाम के साथ, ये अलम है इसलिए मारिफा है। यहाँ दोनों अलिफ लाम से मारिफा है, यहाँ दोनों नकिर है। नंबर 4, हाथी दफ्तरकल अव्वला। ब्रिंग, दो, क्या दो? दफ्तर का, योर नोटबुक। कौन सी वाली? अल अव्वला, फर्स्ट नोटबुक। ये अब इंटरेस्टिंग है। अब बताएं मुझे ये किसकी नात है? अल अव्वला मंसूब भी है। ब्रिंग, दो, हाथी आप पढ़ चुके हैं, इसम फेल आई है। दफ्तरा, क्या दो? दफ्तरा, कौन सी दफ्तरा? अव्वल। तो ये अल अव्वला जो है ये किसकी नात है? दफ्तरा की नात है। ठीक है। ये तो दफ्तरा क्यों मारिफा है? का की वजह से, क्योंकि मुदाफ इलैही मारिफा है। मुदाफ इलैही मारिफा है ना, तो जाहिर है मुदाफ भी मारिफा है। तो अल अव्वला पे अलिफ लाम लगाना पड़ा, क्योंकि बीच में ये आ रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मुश्किल रूल था जो आपने सीख लिया। नेक्स्ट आ जाए 2 पे। अय्यन, स्पेसिफाई, पॉइंट आउट करें, क्या? नात और मनूत को फी कुल्लिन मिसालिन में मायाती। नीचे जो जुमले है उसमें नात मनूत को बस आपने पॉइंट आउट करना है। सिंपल सेंटेंसेस हैं, इसको मैं आपके साथ जल्दी जल्दी करूंगी। उरीदु अन अशरबा मान बारिदन, आई वांट टू ड्रिंक कोल्ड वाटर। जी बताएं,
नाद मनूत, ये मनूत हो गया। और नाद कहाँ है? बारिदन। नाद ज़ाहिर बाद में होती है, कोल्ड वाटर। मैं नाद को रेड से कर रही हूँ और इसको ग्रीन से कर रही हूँ। नंबर 2, अक़राउल कुरान अल करीमा कुल्ला सबाहिन, मैं पढ़ता हूँ कुरान करीम हर सुबह। माशाल्लाह, वेरी गुड। अल कुरान अल करीमा, नोट करें, बताएं मुझे नात कहाँ है? अल करीमा। और मनूत फिर क्या है उसका? अल कुरान। नंबर 3, अस्कुनु, अब नोट कर लें, आपस में मैच करें। ये मारिफा मारिफा, नकिरा नकिरा। नंबर 3, अस्कुनु फी बैतिन जमीलिन, मैं रहता हूँ खूबसूरत घर में। वेरी गुड। बैतिन नकिरा मजरूर, और उसकी नात क्या है? जमीलिन नकिरा मजरूर। और मुज़क्कर मुज़क्कर। नंबर 4, ला तक्तुबा बिल कलमिल अहमरी, नहीं तुम लिखो रेड पेन से, रेड पेन के साथ। रेड होना नात है, और किसकी नात है ये? कलम की। तो ये भी मजरूर है, मारिफा है, दोनों मजरूर मारिफा मुज़क्कर है, हर लिहाज से मैच करिए। नंबर 5, फी हय्यिना मस्जिदुन कबीरुन, हमारे डिस्ट्रिक्ट में या हमारे गांव में, जो भी कैसे हैं, मस्जिद है बड़ी, तो मस्जिदुन कबीरुन। तो मस्जिदुन क्या है यहाँ पे? मनूत। और नात क्या है? कबीरुन, बिग मस्जिद। दोनों नकिरा हैं, आपके सामने मुज़क्कर है। लहू मनारतानी जमीलतानी, उसकी मस्जिद की 2 खूबसूरत मनार हैं। तो जमीलतानी खूबसूरत होना, किसके खूबसूरत मनार है? मस्जिद के। और मनारतानी मनूत, तस्निया है दोनों और नकिरा है, मुज़क्कर है। नंबर 6, ऐनल मुदरिसून अल जुदुदू, कहाँ है न्यू टीचर्स? जी, अल मुदरिसूना मारिफा, नात क्या है? अल जुदुदू, मुज़क्कर मुज़क्कर और जमा अदद। नंबर 7, हफिज तु सूरतैनी तवीलतैनी, तस्निया नी आ गया, मैंने हिफ्स की 2 तवील सूरतें। तो सूरतैनी तवीलतैनी, तवीलतैनी तस्निया है और मुन्नस है, और नात है, किसकी नात है? सूरतैनी की। और ये मंसूब हालत में, दोनों एराब में भी तो मैच करते हैं ना। नंबर 8, नंबर 8 को देखें, हुम रिजालुन सालिहूना, वो अच्छे आदमी हैं, इशारा करके कहा जा रहा है कि वो दे आर गुड मैन। सालिहूना जमा सालिम, जमा मुज़क्कर सालिम, ये नाद बन रहा है, और किसकी नाद बन रहा है? रिजालुन की। रिजालुन जमा तकसीर है और ये जमा सालिम है, लेकिन दोनों मरफू हैं, यहाँ दम्मा है, हरकत का राब, यहाँ हर्फ का राब। नंबर 9, ऐना अखू का सगीरू, कहाँ है तुम्हारा भाई छोटा? तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है? छोटा होना नात है, किसकी? भाई की। तो अखू यहाँ पे मनऊत है, और नात उसकी क्या है? असगीरू। ये मारिफा है नात, तो अखू भी मारिफा होना चाहिए, मारिफा है, बिल्कुल है, क्योंकि उसका मुदाफ इलैहि ज़मीर है। और ये मरफू है, वाव है, और यहाँ दम्मा है। नंबर 10, माजा काला लका अहमदुल पाकिस्तानियू, जी क्या कहा तुम्हें अहमद किसने? पाकिस्तानी अहमद ने। तो ये पाकिस्तानी होना क्या है? ज़ाहिर नात है, किसकी नात है? अहमद की। और अहमद जो है मनूत है, और ये मारिफा है क्योंकि अलम है, और ये अलिफ लाम। तो ये थी आपकी एक ड्रिल, मैंने इनका एनालिसिस नहीं किया, आप खुद करेंगे क्योंकि इस तरह आपको प्रैक्टिस होगी। नंबर 4 एक्सरसाइज, ये आप खुद करेंगे, आप सारा मैंने आपको करवा दिया। यहाँ पे आपने क्या करना है? अकमिल कुल्ल जुमलतिन मिम्मा याती बिनातिन मुनासिबिन वज़बितहु बिशक्लिन, सारा नात मनूत का लेसन है। इधर जितने भी फिलिंग द ब्लैंक है, इसमें आपने नात फिल करनी है, मुनासिब। आप अपनी मर्जी से जो भी वर्ड है उसके मुताबिक, माशाल्लाह इतनी प्रैक्टिस की है तो मनूत दिया हुआ है, तो नात उसके मुताबिक आपने एक एक लफ्ज लिखना है, ये मुश्किल नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लेसन आपका हो गया कंप्लीट। लेसन में बेसिकली आपने नात मनूत का ये एक प्रैक्टिस थी, जो फर्स्ट लेसन में आपने फर्स्ट बुक में पढ़ा था, यहाँ दोबारा पढ़ा। यही वो बता रहे हैं कि वी लर्न द एडजेक्टिव
ये एक्चुअली लर्न नहीं किया, ये आपने प्रैक्टिस किया है क्योंकि सारा आप पढ़ चुके हुए हैं ना। और कह रहे हैं कि एडजेक्टिव को अरबिक में नात कहते हैं, और एंड द नाउन इट क्वालिफाइज इज कॉल्ड मनूत, कि जिसकी नात का जो मनूत होता है यानी मंसूब होता है, मौसूफ, उसको मनूत कहते हैं। दो नाम होते हैं ना। अच्छा, वही बात जो ऊपर सारी चीजें मैंने बताई इंग्लिश में उन्होंने लिखी हुई हैं कि नात जो है फॉलोज द मनूत एंड एग्रीज विद इन फॉलोइंग फोर थिंग्स। जितना वहां था वो सारा इंग्लिश में यहाँ दिया हुआ है एग्जैक्टली, बस इधर डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, तो इसको आप जरूर पढ़ें ताकि आपको क्लियर हो। ऊपर आपने देख लिया ये नंबर में, जेंडर में, एराब में, इस सारे लिहाज से नात मनूत मैच करते हैं। ये था आपका लेसन नंबर 11, लास्ट लेसन, ये आपकी वोकैबुलरी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि आपकी बुक नंबर 2, ओल्ड बुक नंबर 2 ख़त्म हो गई, और अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम बुक नंबर 3 जो कि आपकी लास्ट बुक है उसको स्टार्ट करेंगे। वो एक लंबी जर्नी है, उसमें डिटेल्स हैं लेकिन बहुत फायदा। बुक 2 तो आपका मिडल था, फर्स्ट बेस बनी। अब इंशाल्लाह ताला आप लोग बुक 3 में बहुत कुछ लर्न करेंगे, इसलिए ज़रा हिम्मत रखिएगा, ताकत पैदा करें, ज़रा बादाम वगैरह भी खा लें। और इंशाल्लाह डरा नहीं रही हूँ, आपको समझा रही हूँ कि बहुत मज़ा आने वाला है। जब इंसान ऊपर की सीढ़ी पे चढ़ जाता है ना, छत पे, तो मज़ा ही आता है ना, सब ऊपर से ओपन नज़र आता है, अच्छा लगता है। तो एडवांस चीज़ें आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला और बहुत मज़ा आएगा। पहला लेसन तो ऑलमोस्ट आपको आता है क्योंकि वो एराब के बारे में, और वो मैं पहले ही आपको पढ़ा चुकी हूँ मुख्तलिफ, पीछे जितने भी लेसन्स आए हैं तो वो आपको बहुत, लेकिन उसका एक एडवांस लेवल आप पढ़ने जा रहे हैं तो मज़ा आएगा आपको इंशाल्लाह। ठीक है, चलें दुआ के साथ क्लास ख़त्म करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।